Basics of numerical, laws of motion, first law, second law, and third law. First law is all about inertia. You know about inertia of rest, motion, and direction. Yes and no. And how mass and velocity plays a vital role in force. That quantity is known as momentum, mass into velocity. That is amount of motion contained in a body. Yes or no. So let's see how to calculate the momentum, change in momentum. Before that, students, I would like to say about directions. That is not there, but this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. And the unit vector that is along x is I cap, along y is j cap, along z is k cap. If any vector will be directed in negative x-axis, then that vector I'll be representing as minus I cap. Yes or no? And if any vector is j cap and it is negative to y-axis, then that will be represented as minus j cap. Yes or no? Why I'm saying this I cap and j cap? Because in sometimes we'll represent the momentum in terms of x and y. So actually, for your sake, you could directly take if I'm moving in this direction, if the momentum is positive. If I'm coming back in this direction, the momentum will be negative. This is the thing you could assume. But to know, to represent the momentum in terms of I cap and j cap will somehow help you in finding in many of the cases. Okay. So let's know first how to calculate the change in momentum. Preferring change in momentum. We'll do various cases. Change in momentum. How to calculate the change in momentum, because if you will be able to calculate the change in momentum, then only you could calculate force. Yes or no? You know force is rate of change of momentum. Yes or no? Force is rate of change of momentum, isn't it? Rate of change of momentum is Yes, known as sir. force. If you are able to calculate the change in momentum and the time will be given in the question, then we'll be able to know how much force is being applied on that body. Let's take different cases. Translate. There is a wall, and wall is having mass m, moving with a velocity u, and it goes and strikes to the wall and stick to the wall. It goes and after colliding sticks to the wall. And simply you have calculated in your CBSE classes. Let a body is having mass m, it is moving with some velocity u. After some time, let the velocity changes to v. So initial momentum pi is equal to mu, and final momentum pf is equal to mv. And change in momentum, that is delta p, is final momentum minus initial momentum, that is mv minus mu. Taking m common, sometimes v minus u. Students, if the body is moving with some velocity u, that means its initial momentum kitna hai? Pi is equal to mu, na? Correct? And it is going and Yes. striking to the wall. When it is striking to the wall, so the velocity is becoming what? Zero. No? Body is coming to rest, strikes to the wall and comes to rest. ऐसा theory पे लिखा जा सकता है, या नहीं तो फिर diagram पे दिखाया होगा वो. And comes to rest. Comes to rest means इसका final velocity कितना हो जा रहा है? Zero हो जा रहा है. So that means final velocity is becoming what? Pf is equal to zero. So if it is required to find the change in momentum, delta P is equal to how much? Pf minus Pi. That is 0 minus mu, students, correct? That is equal to minus mu is the change in momentum. Yes or no? Friends, if I will ask you about the change in momentum, magnitude of change in momentum, then you will simply write mu. But what does the negative sign indicates? Negative sign indicates about the direction. डायरेक्शन का मतलब यह है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम नेट इसी डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, दैट इज अलोंग द वॉल, मतलब नॉर्मल टू द वॉल एंड अवे फ्रॉम द वॉल. अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन किस तरफ होगा? along the normal, मतलब perpendicularly change in momentum act करेगा, that is along the normal and away from the wall, away from wall. Okay, understood, students? So this I could have also written this as I was saying you about I cap and j cap. So P initial is equal to, I could have written mu I cap, correct? समझ आ रहा है ना? तो pf is equal to 0 है. अगर मैंने चेंज इन मोमेंटम लिखा, डेल्टा p is change in momentum, that is m, that is 0 pf minus mu I cap. Yes or no? So that is, it could also be written as mu, that is mu minus mu. 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 That is mu minus mu.
minus I cap. Minus I cap is it is acting along negative x-axis. If it is acting along negative x-axis, that means the magnitude will be mu, no doubt. But if it is asking about direction, then it is along the normal and away from the wall. Option 1, option 2, option 3. इस तरह दे सकता है, तो आपको डायरेक्शन के साथ भी थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। ये एक केस है, फिर हम दूसरे केस पे जाते हैं। जस्ट नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, ये पहला केस जो था उसपे क्या हुआ कि बॉल जाके स्टिक कर गया, स्टिक्स टू द वॉल। लेट चलो केस 2 पे देखते हैं। लेट्स सी द केस 2। यस सर, and coming to the points directly, that mass is m and it is moving with a velocity v. It goes and strikes to the wall and it returns with the same velocity again. Striking to the wall, it returns with the same velocity. Okay. So अगर हम p इनिशियल की बात करें तो p इनिशियल कितना था, mv i क्या, क्योंकि along पॉजिटिव x एक्सिस जा रहा था, करेक्ट। अगर p f की बात करें तो क्या होगा, mv माइनस i क्या, यस सर, क्योंकि ये स्ट्राइक करके फिर वापस उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, सेम वेलोसिटी पे। सो अगर चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या करेंगे, pf minus pi, that is how much, pf is mv minus I cap minus p initial is also mv I cap. So how much it became, 2 mv minus I cap, correct, yes or no। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आपको पूछा गया कि बॉल की चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 2 mv, नो डाउट, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक्चुअली आता है, एक बॉल 5 kg 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा था, एक बॉल को स्ट्राइक किया और फिर वापस उसी वेलोसिटी में रिटर्न कर गया, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, तो डायरेक्टली 2 mv। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव, मतलब along the normal away from the wall, isn't it? Direction is along the normal away from the wall, क्योंकि नेगेटिव है टोटल, along the normal away from the wall। Got it students? Yes, sir. ठीक, उस तरह अगर उसने अलग सा वेलोसिटी दे दिया, डायरेक्टली बताओ, जस्ट सेम m है, v1 वेलोसिटी पे जा रहा है, यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद वो फिर v2 वेलोसिटी में रिटर्न आ रहा है, ठीक है, मास सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल, दैट इज mv2 minus I cap, yes or no, minus mv1 I cap, yes or no। So if I'll take m common, then it will be how much, semi, v2 plus v1 हो जाएगा, v1 v2 plus v1, करेक्ट, इनटू माइनस I cap हो जाएगा ना। तो दैट मींस अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो कितना होगा क्वेश्चन पे, m into v1 plus v2, करेक्ट। और डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, दैट इज along the normal and away from the wall, yes or no, along the normal away from the wall। ये हो गया लीनियरली स्ट्राइक कर रहा है। अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि वो एंगल करके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, कुछ केसेस पे आपको इस तरह मिल सकता है, इट इज स्ट्राइकिंग विद सम एंगल, ओके। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा एंगल वो दिया रखा है। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन लेट, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर ये मैंने ले लिया मास, इसका मास m है, और वो सेम वेलोसिटी ले लेते हैं, अगर अलग वेलोसिटी दिया तो नो प्रॉब्लम, ये जाके यहाँ पर v वेलोसिटी में स्ट्राइक करता है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पे ये वाला एंगल दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन पे ये वाला एंगल दिया रहता है, तो ध्यान से आप देखना। और फिर स्ट्राइक करने के बाद उतने ही एंगल बना के, जितना एंगल बना के स्ट्राइक हुआ था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, उतना ही बना के वो उतना ही स्पीड पे चला जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर v वेलोसिटी इस तरफ आ रहा है कुछ एंगल करके, अगर ये थीटा है, मैंने बताया था आपको कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स निकालना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। अगर ये v है, अगर ये थीटा है, तो इस तरफ कितना हो जाएगा, v sin थीटा। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट, मान के चलो मैं mv ले जा रहा हूँ, पूरा मोमेंटम इज mv, तो इस तरफ का मोमेंटम कितना होगा, इट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा ना ये। तो मतलब इस तरह मोमेंटम अलोंग x क्या काम कर रहा है, mv sin थीटा नीचे की तरफ काम कर रहा है, और यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, mv cos थीटा। समझ पा रहा है स्टूडेंट्स, समझ पा रहा है। यस Yes, सर। sir. अगर p इनिशियल की बात करूं मैं, तो ठीक से देखो, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, mv sin थीटा इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mv sin थीटा इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव x y लिखूंगा या नेगेटिव y है ना। Negative. दैट मींस नेगेटिव। मैंने ये लिख दिया mv sin थीटा, चलिए पहले x लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, ये माइनस j कैप, ठीक है, मैंने माइनस j कैप लिखा, और यहाँ पर ये जो आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो दैट इज प्लस
mv cos theta I cap, करेक्ट? दैट इज इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं? और जब ये जा रहा है, जाते के वक्त भी इस तरफ हो रहा है, दैट इज mv sin theta, करेक्ट? और ये इसी डायरेक्शन में रिटर्न कर रहा है, व्हाट इज दैट? mv cos theta। डायरेक्शन चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल पे, जब कोलाइड आ रहा था तो इस तरफ था डायरेक्शन, जब जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर p फाइनल रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिखूंगा? ठीक उस तरह mv sin थीटा, वही माइनस j क्या, माइनस mv cos थीटा I क्या, इजंट इट? लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, माइनस क्यों? क्योंकि उल्टा डायरेक्शन पे जा रहा ना, मैं यहाँ पर माइनस Yes. आई लिख सकता हूँ या फिर माइनस कॉमन लेके यहाँ पर लिख सकता हूँ। यस सर, नो? समझे ना? यस सर। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं, सो दैट इज pf माइनस pi, ठीक है? सो दैट इज हाउ मच, देखो pf माइनस pi अगर बनाऊंगा तो mv sin थीटा जो भी है सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस mv था और यहाँ पर माइनस जब करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 2mv cos थीटा I क्या। सबको समझ पे आया? दैट मींस अगर चेंज इन मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करूं, Yes. दैट इज नथिंग बट 2mv cos थीटा, करेक्ट? एंड डायरेक्शन इज माइनस I कैप है, तो इसीलिए along the wall, along the normal, away from the wall, along the normal, away from the wall, away from wall। ठीक है, उस तरह स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन माइंड कि कभी कभी ये एंगल मैंने अभी दिया था, अगर क्वेश्चन पे इसने इस तरह दे दिया, सो डायरेक्टली अगर v1 v2 अलग हुआ तो नो प्रॉब्लम, आपको उसी तरह ही डील करना होगा, ठीक है? कॉमन लेके करना होगा इसको, ठीक है? वो कैंसिल आउट नहीं होगा, डायरेक्टली मैं लॉजिक बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में मतलब मेमोराइज करने से क्या होता है, बच्चे याद रख लेते हैं, 2mb हो जाता है, 2mb cos थीटा हो जाता है, बट अगर कॉन्सेप्ट मतलब कैसे हो रहा है वो अगर समझ में आ जाएगा तो कुछ भी टाइप का क्वेश्चन अगर आया, स्टूडेंट्स ये एंगल थीटा दिया था पहले, अगर ये एंगल थीटा दिया था देता तो देखो, तो अगर ये वाला एंगल थीटा देता तो चेंजेस क्या होता, ये हो जाता है mb cos थीटा, सर MB mb cos sin थीटा। थीटा mb sin थीटा ये भी उल्टा हो हो जाता है जाता mb है। cos थीटा, तो mb cos थीटा कैंसिल हो जाता, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता, माइनस 2mb sin थीटा। अंडरस्टूड ना? यस सर। तो ध्यान से देखना है कि कौन सा वाला एंगल दिया हुआ है, तभी जाके आप उसको निकाल सकते सर यहाँ पे along the normal, हैं। सी हियर मैं और एक बता रहा हूँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है नहीं है, फिर भी कुछ हद तक आपको पढ़ना होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? प्रोजेक्टाइल मोशन पे चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखो कुछ टाइप का क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब दो टाइप का, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल तीन टाइप का है लेकिन बेसिकली दो टाइप का है। एक है इस टाइप का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अब इस तरह के क्वेश्चंस भी, एक बॉडी को मैंने यू से थ्रो किया और ये एक इस तरह की पाथ कवर करता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसके रिगार्डिंग क्या क्या फिजिक्स से कैसे ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि कितने ग्राउंड से कितनी दूरी पर ये फॉल करेगा, दैट इज उसको रेंज कहते हैं, और कितनी हाइट से मैं उसको गिरा रहा हूँ उसको हाइट कहते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है? और यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, मान के चलो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, मैंने u से एक बॉडी को थ्रो कर दिया तो ये इस तरह आके यहाँ पर पहुंचा, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या क्या मतलब पूछ रहा होगा, क्यू वेलोसिटी में फेंक दिया, इतने टाइम के बाद यहाँ पर पहुंच गया, तो कितने हाइट से मैंने इसको स्टार्ट किया। तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप अप आपका वन डायमेंशनल मोशन है बट स्ट्रेट लाइन मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन नहीं है, फिर भी ये टू डायमेंशनल मोशन का पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन लॉज ऑफ मोशन तो मैं नहीं बता रहा हूँ, उस पर अगर दूसरा क्लास करेंगे तो बताऊंगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक क्वेश्चन आया था ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट्स, और भी एक है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है? क्या है स्टूडेंट्स? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बताता हूँ, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या है, जस्ट बेसिक आइडिया कि मैंने इंक्लाइंड करके एक बॉडी को इस तरह थ्रो किया यू में और थीटा एंगल बनाया मैंने ग्राउंड के साथ, तो ये तो स्ट्रेट नहीं जाएगा ना, ग्रेविटी इसको खींचेगा, तो ये इस तरह की एक पाथ फॉलो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने यहाँ से बॉडी को थ्रो किया ए, ये मैक्सिमम Yes, हाइट sir. है बी, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, ठीक है? ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए को जो बोलते हैं ना इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मैंने यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग पॉइंट, ठीक है? स्ट्राइकिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैक्सिमम हाइट। तो चेंज इन मोमेंटम वो पूछ सकता है इस केस पे, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्ट्राइकिंग पॉइंट में क्या होगा। स्टूडेंट्स जस्ट सी कि अगर मैंने यू से यहाँ पर स्ट्राइक किया तो इसका भी एक कंपोनेंट आएगा ना, यू कॉस थीटा, करेक्ट? इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा ना, यू साइन थीटा। समझ पा रहे हैं? अगर इसका मास m है
तो यहाँ पर ए पॉइंट पे मोमेंटम एट ए, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, अगर मान ले तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बताओ? दैट इज mv cos थीटा आई कैप लिख सकता हूँ along x प्लस mv sin थीटा, सॉरी u लिया हूं ना मैं, u mu cos थीटा आई कैप mu sin थीटा j कैप लिख सकता हूँ। फ्रेंड मतलब ये m u जो है उसका दो Yes, कंपोनेंट sir. मैंने लिखा दिया, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास u sin थीटा u cos थीटा कैसे हुआ। तो मतलब मोमेंटम इस तरफ काम कर रहा है mu, बट उसका दो कंपोनेंट काम कर रहा है, दैट इज एक along x और एक along y। तो ये पॉजिटिव x पे है इसलिए मैंने प्लस आई कैप लिया, और ये पॉजिटिव y पे इसलिए मैंने प्लस j कैप लिया। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट सेइंग हियर, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना u cos थीटा, थ्रू आउट द मोशन ये सेम रहता है, u cos थीटा सेम रहता है, बट मैक्सिमम हाइट पे देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल है ना, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, जाता है, जब यहाँ पर पहुंचता है तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज देयर, नो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी देयर हियर। बॉल का जब इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो एक ही वेलोसिटी होगा, दैट इज u cos थीटा। मतलब यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह इसको सोच सकते हो। ये भी u जो है ना, u हमेशा सेम रहता है अलोंग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको चेंज करके लाता है। तो अगर बी पॉइंट की मैं मोमेंटम निकालूं, pb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज ओनली mu cos थीटा आई कैप, बिकॉज़ j 0 है तो नो कंपोनेंट ऑफ j विल बी देयर। समझ पे आया? ठीक Yes, है। sir. और अगर Yes, स्ट्राइकिंग sir. पॉइंट की बात करें हम, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी दो तरह की होगा। जस्ट रिमेंबर स्ट्राइकिंग पॉइंट, अगर pc की बात करूं मैं, c पॉइंट ले लिया मैंने इसको, सो दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, तो पॉजिटिव है, mu cos थीटा आई कैप होगा, बट इसका जो कंपोनेंट है वो किस तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है ना, तो ये माइनस j कैप हो जाएगा। गेटिंग? दैट इज माइनस mu sin थीटा j कैप। थोड़ा समझ में आया सबको? तीनों पॉइंट का क्या है मोमेंटम? समझ में आया ना स्टूडेंट्स? पी ए पे मोमेंटम कितना है? Yes, sir. दैट इज ओनली mu, बट मैंने उसको ये में लिख दिया, mu cos थीटा i क्या प्लस mu sin थीटा j क्या। मतलब along x इतना काम कर रहा है, along y इतना काम कर रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ओनली along x, बिकॉज नो कंपोनेंट ऑफ y इज देयर। और यहाँ पर स्ट्राइकिंग पॉइंट पे ये पॉजिटिव x पे, इसलिए मैंने mu cos थीटा i क्या लिखा, और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना? mu sin थीटा माइनस j क्या, क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रहा है नेगेटिव y में। वो समझ पे आया? फ्रेंड समझ पे आया कि नहीं? Yes, sir. Sir, the question. Yes, sir. sir. तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं ए और बी पॉइंट पे, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट पे, तो देखो क्या हो जाएगा। मतलब सब्सट्रैक्ट करूंगा किसको? mu cos थीटा आई कैप, ठीक है नहीं, mu cos थीटा आई कैप माइनस क्या करूंगा, mu cos थीटा आई कैप प्लस mu sin थीटा j कैप हो जाएगा ना, सॉरी माइनस, फिर यहाँ पर ये था ना a का, mu cos थीटा आई कैप माइनस mu cos थीटा आई कैप माइनस mu sin थीटा j कैप, है ना? ठीक है ना स्टूडेंट्स? फाइनल माइनस इनिशियल, pb माइनस pa कर दिया Yes, मैंने। sir. तो Yes. mu cos थीटा कैंसिल आउट हो Yes, जाएगा ना, sir. तो ओनली क्या रहेगा? दैट इज इक्वल टू माइनस mu sin थीटा j कैप। अंडरस्टूड? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट पे चेंज इन मोमेंटम क्या है? mu sin थीटा j कैप। समझना स्टूडेंट्स? ए और बी पॉइंट के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ठीक है, उस तरह अगर मैंने बताया Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, तो क्या करेंगे? सी पॉइंट क्या था? देखो यहाँ पर mu cos थीटा आई कैप, तो लिखो mu cos थीटा आई कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? फिर माइनस करूंगा क्या? mu cos थीटा आई कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। ये सब नो, ठीक है स्टूडेंट्स? तो mu cos थीटा कैंसिल ना, so that is how much 2 mu sin थीटा j कैप। अंडरस्टूड? अगर उसने दे दिया कि ये थीटा दे दिया, यू दे दिया, तो आपको डायरेक्टली अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पूछा होगा तो आप क्या करोगे? 2 mu sin थीटा डायरेक्टली, 2 into मास into u into sin थीटा का वैल्यू। गॉट इट? अगर सिर्फ मैक्सिमम इस पॉइंट और इस पॉइंट में पूछा होगा तो mu sin थीटा ओनली। बस मैंने ये फॉर्मूला बताने के लिए आपको डायरेक्टली बता सकता था, बट ये बता दिया क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। एंड दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आपको आई कैप जे कैप समझ पे नहीं आ रहा है। अज्यूम करके आप समझ सकते हो, आई थिंक।
इज दैट क्लियर? Yes, sir. फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस पे मान के चलो ये 1 kg है, ये 8 kg है, 27 kg है, तो कितना हो गया टोटल मास, कितना हो गया मिलके सबका? Sir, 36. 36 kg। ये सब लेट मैं यहाँ पर 72 न्यूटन की फोर्स दे रहा हूँ। कितना फोर्स दे रहा हूँ स्टूडेंट्स? 72 न्यूटन फोर्स दे रहा हूँ। तो व्हाट विल बी द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट्स? ये टोटल इंटरकनेक्टेड सिस्टम कितने एक्सीलरेशन में जाएगा? F इज इक्वल टू ma, F नेट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। ये सब तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? F बाय टोटल मास ना, दैट इज 72 Yes, बाय sir. 36 कितना हो जाएगा? 36. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारे ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ये 27 kg जो है ना, उसको कितना फोर्स चाहिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाने के लिए? दैट इज 27 into 2, करेक्ट? कितना हो गया? 54 ना न्यूटन। यस सर नो? Yes, sir. लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ कितना? 72, तो बाकी का फोर्स कहाँ जाएगा? यहाँ पर ना। तो ये जो रोप है बाकी फोर्स एक्सटेंड कर पाएगा 8 kg को, तो दैट फोर्स विल बी हाउ मच? दैट इज 72 minus 54, कितना हुआ? सर 18। 18 न्यूटन। तो ऐसे भी आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 18 हो रहा है, 72 minus 54 कितना हो रहा है? हाँ सर 18 हो रहा है। हाँ sir, 18. 18 हो रहा Sir, है। 18. तो वो 18 फोर्स इसको मिलेगा 8 kg को, लेकिन 8 kg को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 8 into 2 कितना? 16 न्यूटन ना। 16. तो वो अपने Yes, पास sir. 16 न्यूटन रख लेगा, बाकी कहाँ पर ट्रांसफर करेगा? किसको? T1 को। 1 kg को. तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? 18 minus 16 कितना? 2 न्यूटन ना। 2 Newton. तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? 2 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन कितना होगा? 18 न्यूटन। तो फोर्स बिटवीन दिस रोप, द फोर्स बिटवीन दिस रोप, और ये 1 kg को अभी अगर मैं यहाँ पर 2 न्यूटन दे रहा हूँ, तो बेशक है कि 1 kg अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, तो उसको 2 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सब फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ले रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन की? Yes. Yes, sir. अगर मैं ओनली फ्री बॉडी डायग्राम एक बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक डायग्राम जिसमें हम सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊं, तो यहाँ पर मैंने लिखा 72, यहाँ पर मैंने लिखा T2, मुझे नहीं पता T2 कितना है, और यहाँ पर ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे जा रहा है। तो बॉडी इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली 72 इज मोर देन T2। तो अगर, और यहाँ पर मास m है, तो अगर मैं लिखूं तो 72 minus T2, 72 इस तरफ है, T2 इस तरफ काम कर रहा है। ऑलवेज टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 72 minus T2 is equal to m into 2, m into a net acceleration on the body. So that is 72 minus T2 is equal to 2 into 27. तो ऐसे T2 कितना मिल गया? 54 न्यूटन। अब देख के भी बना सकते हो, इस तरह इक्वेशंस लिख के भी बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो ना? Yes. Yes, sir. सर T2 54 होगा